I know why you are here. You want to know how to listen like a therapist. It should be noted that therapist is a trained professional and you cannot diagnose a person without a license. Even a trained professional without a license can't do it, do you? But there is a way to be someone's therapist, not like a professional therapist, but to be that one friend you will call upon every time you hit the wall. I can make you that friend. It's just a snap ahead. So I'll tell you how you can be that friend. That's it. How to be that friend. This is the topic. And if you want to be someone's favorite, you should know that people don't remember words. They remember the feelings. They will not remember you as a person, who you are. They might not remember you, but they will remember what you make them feel. If you make them happy in that moment, they are going to remember that moment as a happy memory in their brain storage. But if you made them look sad, tear up, then buckle up, because they are going to hate you for their whole life. They are not going to remember the word you said, but the feeling they felt is like a precious gem to them. Today I'm gonna teach you how to make someone feel seen, heard, and understood. Look, the point of the whole conversation, the point of the whole video is that you are going to be listening like a therapist. So the person talking to you will not feel like they are talking to a wall or being ignored by someone, by you, obviously. Yeah, let's get started. First of all, I'm Mariam. I'm Mariam Sheikh. I'm a student of psychology. I love to talk about psychology, development, career, life, and philosophy. And I have been practicing this technique like for about 1 year, and I've noticed some changes in people's attitude with me, and it's phenomenal. I think that I should share it with you all because this can be your inspiration. It's pretty enough to be an inspiration. Let me introduce you to this topic, to this skill that we as a professionals use it. I'm not a professional, I'm still a student, but professionals in my field uses it. The skill I'm talking about is empathetic listening. Empathetic listening might sound exhausting or might be like something bookish related, something out of Oxford Dictionary, but listen, it's not that complicated. It's just about listening. How you are going to listen to the person talking to you. Empathetic listening is a pro level thing. That, as I said, it's professional. It's what professional uses. You should be very cautious while using it. Don't burn yourself out. Buckle up, because we are going into the world of empathy, and within that world there's a small portion called empathetic listening. Empathetic word comes from empathy. Empathy basically means putting yourself into someone else's shoes. It's like you're going to feel what they felt. You're going to see what they are seeing with their perspective. We as a person, we have different perspectives. Someone else will look at the situation with a whole different point of view than yours. In empathetic listening, in empathy, you as a person change your perspective to that person. I'll explain you this with a situation example. A woman being cheated on comes to you as a friend. You are the friend of that woman, and she has been cheated, betrayed, and she comes to you. She tells you that she's being betrayed and she's feeling broken, and you as another human being with a whole different perspective, with a whole different experiences, sits there and tells her that it's okay. It happens a lot of people. I've seen a lot of people going through this, and you will do it anyways. Don't be sad. Don't tear up. It's okay. It's not going to work out. She will find someone else to talk it out, because she wants someone to actually listen to it. She wants someone to actually understand her, that situation she is coming from.
people, most of the time, you might be in that woman's place. Who knows? Someone might have just renewed the whole mood, renewed the whole conversation, telling you that it's okay, you can give up, or it's okay, it happens. They might have just clashed their own experiences that was not even necessary for that situation, or maybe that were not even related to it. It happens. There are people out there, they want to share whatever, they want to share everything. People like to talk about themselves. Trust me, लिख के ले लो ये कहीं पर। लोगों को अपने बारे में बातें करना बहुत पसंद है। लोग अपने बारे में 10-10 घंटे भी बात कर सकते हैं मगर सुनने वाले बहुत कम होते हैं। there are only few of us who can actually listen to someone, और उससे भी बहुत कम होते हैं जो समझ पाते हैं, जो आपको समझ लेंगे, जो आपको मतलब पकड़ लेंगे कि ओके हाँ यहाँ गलती है और यहाँ ये ऐसा फील कर रही है। वही पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। That woman, if I am the one who is actually practicing empathetic listening with that woman, I will be like, I got it. उसके बाद वो शुरू कर देगी कि उसे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको ये सब कुछ कैसे figure out हुआ, and I'll be okay. I want to renew the conversation with sharing my own experiences. I want to renew it with sharing why questions and that rapid fire. Why would I force her? वो खुद तैयार है बोलने के लिए। I don't need my energy to be wasted on. I just know that I should be there, present with whole, mentally, physically, to actually support her with all my might. That's it. That's the whole point. Being as a listener, that's the only thing that you need to do. You have to be present there. You have to listen to her. You have to make them feel understood. That's it. That's it, guys. And empathetic listening will make you like a pro in it. Empathetic listening will tell you how you can be that one friend that anyone will call upon when they hit such situations. Or maybe they just want to share what they are feeling, or how they just got into their Harvard University, their dream university. Whether if it's a happy moment, a tragic, a sad, epic, you will be there. You will be that person they will be calling about. So empathetic listening is very important. Now I'll share you how to actually gain that skill. It's very simple. It is very simple. It's the most simplest thing you can do. I think so. The first thing first, you as a person have to be there. That's it. Sit with that person. Be comfortable. Feel like it's your home, even if it's not yours. Be in your best posture. Don't be anxious. Don't feel stressed, because the person you are sitting with will feel that stress within you. So they might hesitate to share their experiences with you, because जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बाहर दिखता है. It reflects, your brain mirrors that behavior, that feeling, and people can actually feel it. And he concept है confident का भी, but we are not talking about confidence, so let's just talk about empathetic listening. Here, look at the person if they are comfortable. If you are comfortable by looking in the eyes, do the eye contact, or maybe it's preferable. मैं recommend करूँगी eye contact करना, but हर cases में I know नहीं हो पाता है. We can't do eye contact with everyone in the world. So ठीक है, कोई बात नहीं, eye contact ना रखें, कहीं और देखें, लेकिन कहीं ऐसी जगह देखें जहाँ comfortable हो. ठीक है, be in your comfort zone, क्योंकि comfort बहुत important है मेरे experience के मुताबिक. If you are not comfortable, how are you going to handle the situation that's coming on? So दूसरी चीज़, conversation तो अगर वो start नहीं कर रहे तो हम खुद कर दें. I think you are not seems right. What's going on in your mind lately? ये सब questions होते हैं. You can ask them, like it's called it's called open-ended questions. मतलब आप ऐसा नहीं पूछ रहे खाना खाया, हाँ, इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ और ना ही होगा.
ये नहीं होता। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, लंच में क्या किया, this opens a whole new conversation. So you are going to ask कि are you fine? नहीं नहीं और हाँ ही होता है इसका, are you fine? वो आपको मतलब नहीं बताएगा कि मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए you have to ask them like how have you been lately? It does sound like a robotic. How have you been lately? बस इतना ही था। ये क्वेश्चन उनके लिए जो मतलब सबके लिए, obviously सबके लिए, मतलब आई मोस्टली स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बिकॉज सामने वाले जो होते हैं उनको पहले से ही समझ में आता है कि हाँ बंदा रेडी है मेरी बात सुनने के लिए। सो एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने कहा ना लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है। यस ऑब्वियसली आई एम गोना टॉक अबाउट माई सेल्फ टू, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या पूछना है। हाउ हैव यू बीन लाइकली, हाउ हैव यू, यही क्वेश्चन पूछना है, सामने वाला खुद आंसर देगा, खुद जवाब देगा। एंड लिसन, this is the most important thing. Even therapists have to be even हमको भी ये बात सोच के रखना पड़ता है दिमाग में कि we are not leading that conversation now. Yeah, we are not leading that conversation. Captain of the ship हम नहीं हैं, वो है जिसकी कहानी है, हम एज ए लिसनर नहीं है। स्पीकर कौन है? स्पीकर सामने वाला है। तो अपनी कहानी कौन बताएगा? सामने वाला बताएगा। हमने क्या करना है? हमें सुनना है। That's it, बस खत्म। आपने बीच में अपनी कहानी नहीं बोलनी है। मैंने पहले भी बोला था बिकॉज ये होता है, आई नो, आई हैव बीन देयर। बहुत अंदर से आ रहा होता है कि ओ या मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है, मुझे भी शेयर करना है, बट रुक जाओ, मुंह बंद कर लो, बिकॉज बहुत अच्छी कन्वर्सेशन को खराब करने के आदि आप खराब कर दोगे अगर ऐसा किया तो ये एम्पैथेटिक लिसनिंग ऐसा नहीं होता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग में कौन होता है? सामने वाला होता है, कैप्टन। क्या अगर बात कहीं और जा रही है तो आप उसको बीच में एक चीज बोल के वापस ला सकते हो, लेकिन पूरी बात आपके लिए नहीं चल सकती। आप ये नहीं बता सकते कि आपको क्या सुनना है। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। रैशनैलिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले की गलती है तो आप उसको बोल दो तेरी गलती है। सब चीज का अपना अपना टाइम होता है ना, सब चीज का अपना अपना तरीका होता है। तो आप बोल सकते हो बाद में, लेकिन आप बोल सकते हो कि गलती भाई आपकी भी है, लेकिन उसको तरीके में बोलो, बाद में बोलो, पहले उसका पर्सपेक्टिव सुन लो। नाउ अब जब आप सुनने लगे हो, नाउ दैट यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन एंड द स्पीच हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, अब आपका काम ये है अब कि आप उसको ध्यान से देखो। Not talking to stare that person and scare them. नहीं, देखो का मतलब नॉन वर्बल बिहेवियर्स को नोट करो। अब भाई आप पूछेंगे नॉन वर्बल बिहेवियर क्या है? इजी है। नॉन वर्बल बिहेवियर का मतलब बहुत सिंपल है। देखो, वर्बल का मतलब क्या होता है? स्पीच, बोलना, वर्ड्स तो जुबान से आप निकल रहा होगा उसके, तो आप सुन रहे होंगे। अगर आप कहीं छत पे भी देखो तो भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज को आप छत पे देख के नहीं सुन सकते, क्योंकि वो वर्ड्स में नहीं होते। वर्ड्स में होते हैं बट वो नॉन वर्बल क्यूज मोस्टली जेस्चर्स को बोला जाता है। जेस्चर्स जैसे क्या कर रही हूँ मैं? किसी को आदत होती है नेल कट करने की, एंजाइटी में एंग्शियसनेस हो गया, जब एंजाइटी हिट करती है तो वो नेल्स वो चबाने लग जाते। च्यू छोड़ो, हाँ करते हैं लोग, और ब्लिंक बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसा ऐसा करके जब कंफ्यूजन हिट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मोस्टली लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको एक थेरेपिस्ट की जैसा सुनना है, किसी को समझना है किसी को, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी। एक्चुअली यू हैव टू नोट देम कि वो मैंने ना पर्सनली, मैं जब किसी से बात करती हूँ एम्पैथेटिक लिसनिंग, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर ही नहीं होती हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है। कुछ लोग चलते चलते बात कर रहे होते हैं मुझसे, तो वो बैठ जाते हैं। जब कोई बड़ी बात हो रही होती है एकदम गहरी सी, वो बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं, फिर अचानक जब उनको दिल करता है कि कुछ अपना कुछ हैवियर बोलना होता है, तो वो खड़े होकर चलने लग जाते हैं, वो चल के बात करते हैं। और फिर मैं ऐसे सबको देख रही होती हूँ,
मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठ के बात करो, मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए ना मूवमेंट करने से वो अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल दे रहे हैं। एज आई सेड, कंफर्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो बैठ के कंफर्टेबल नहीं तो खड़े हो जाए, लेट जाए। थेरेपी में लेटा जाता है ऐसा, कभी देखा होगा आपने वो वाली चेयर, आधा लेट के हॉस्पिटल जैसा। एनीवेज, सो चलने से आपको पता चल रहा है वो टेंशन में है, वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, वो चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो अपना ध्यान वैसे ही भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बात भी कर रहे हैं, और वो ऐसा भी नहीं कि शेयर नहीं करते, शेयर करते हैं वो। सो ये भी एक नॉन वर्बल क्यू में आता है। एंड आई हैव सीन, और मुझे लगता है ये नॉर्मली सबने देखा होगा, स्पीच में शटर और पॉज बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभार जब एकदम हैवियर हो जाता है तो लोग वाकई पॉज कर लेते हैं, कभी कभार तो वो पॉज ऑकवर्ड भी हो जाता है, बट देन सब कुछ ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, शटर वॉइस में से आई नो होता है ये। कभी कभार स्वेटिंग अचानक से ज़्यादा हो जाती है। इट डज हैपन। क्यूज मिलेंगे आपको जब आप किसी को वाकई बैठ कर देखने की कोशिश करोगे। These are non-verbal cues and you have to note them out. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है कन्वर्सेशन में। एज आई सेड, मुझे समझ में आ गया है कहाँ पे को बहुत ज़्यादा लोग मतलब अनकम्फर्टेबल है। अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, और अचानक से जब कोई टॉपिक शुरू होता है उसी के एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ अलग से नहीं है, बट वो अगर अचानक से नेल बाइट करना शुरू कर दे, या पैर टैप करना बार बार शुरू कर दे एंजाइटी में, या हाथ उसके शिवर होने लग जाए, तो मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है, मुझे इस पर ज़्यादा लोड ही नहीं देना चाहिए, ज़्यादा मतलब इससे फोर्स नहीं करना चाहिए इसको अंदर से निकालने के लिए। सो वहाँ मैं कोई जोक क्रैक कर देती हूँ, या फिर पॉज कर देती हूँ, साइलेंट, क्योंकि साइलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जोक वोक ना क्या करो, मैं तो बोलती हूँ आई रिकमेंड बीइंग साइलेंट। चुप हो जाओ, उसको भी मतलब अगर वो चुप है ना तो उसके साथ चुप हो जाओ, बस ख़त्म, साइलेंस। क्योंकि अक्सर ना जब पॉज होने के बाद वापस बात शुरू होती है तो वो लोग उस चीज़ को जो नहीं बोल पा रहे होते हैं उसे अच्छी तरह बोलना शुरू कर देते हैं। दे फील वेरी कंफर्टेबल। पता नहीं, साइलेंस में ऐसा कुछ है, बहुत एक पावर है, इट्स अ पावर यू कैन यूज इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ। एनीवेज, ये आपका पहला स्टेप हुआ जब बात शुरू हो जाएगी। दूसरे स्टेप का पहला स्टेप क्यूज नोट करना, और दूसरा स्टेप जो आपकी तरफ से होगा वो कंटिन्यूएशन ऐड करना होगा। अब कंटिन्यूएशन ऐड कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली टेक्स्ट में भी ऐसा किया जाता है, जैसे आई सी, गॉट इट, ओहो करते हैं ना हाँ ऐसे ही। तो बस आपको बैठना है, देखना है उसे, और आई गॉट इट, गॉट इट। अगर लंबा सेंटेंस चाहिए, कुछ बहुत मतलब आपको लग रहा है कि आपको ऐड करना चाहिए, कोई बहुत लंबा सेंटेंस ऐड करना है आपको, तो सामने वाले ने जो बोला है उसी को रिफ्लेक्ट कर दो, या रिफ्लेक्ट कर दो। कैसे करोगे आप? किसी ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सब कुछ बहुत ब्लैंक हो गया है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो कि तुम कंफ्यूज हो, समझ सकती हूँ मैं। कुछ भी जो आपको लगे कि हाँ यहाँ ऐड किया जा सकता है। मैं आपको वो सेंटेंस ऐसा फ्रेम करके नहीं दे सकती। वो अलग बात है कि मेरी गाइड में फ्रेम किया हुआ है वो सेंटेंस, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। द नेक्स्ट थिंग इज नाउ, अब आपकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू हो रही है, वो सामने वाला बोलता जा रहा है, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, देखो आप सुन रहे हो, आप प्रेजेंट हो, आप उसमें ऐड कर रहे हो, नॉन वर्बल क्यू भी देख रहे हो, सब कुछ फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रही है। अब आप उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर चुके हो। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो बचपन में तो ऐसा होता ही है, माँ बाप मारते हैं, कभी कभार अब्यूसिव वायलेंस की भी बातें होती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ बचपन में तो सबको ही मार पड़ती है ना, माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबकी जो थॉट होती है, सबके बर्दाश्त करने की जो हद होती है वो अलग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर अच्छे एक्सपीरियंस है तो सामने वाले के पास भी अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। हम जो भी है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, आज जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे थॉट प्रोसेस है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं,
एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 अलग अलग कहानियाँ बैठी है, 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव, 10 अलग अलग एक्सपीरियंसेस, 10 अलग अलग थॉट प्रोसेस, 10 अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग तरह की, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, सब कुछ अलग होता है हमारा. That makes us human being. Okay, so embrace that variation, embrace that difference within us. ये हो गया हमारा. रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है. ओके, पर्सपेक्टिव, किसी की अगर पर्सपेक्टिव से आपको देखना है तो आपका जो बाइनाकुलर आपकी आंखों के सामने है उसको हटाना पड़ेगा. आपको होल देखना पड़ेगा उसके एक्सपीरियंस के साथ. अगर आप उसको जानते हो तो ऑब्वियसली, नहीं जानते हो तो मैं तो बोलूँगी चुप बैठो, सुनते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाता. कुछ कभी कभार बीच में वो लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो ऐसा लगता है जैसे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही. बट उस वक्त मैं रिकमेंड करूँगी कि पॉज हो जाओ, शांत हो जाओ, हाँ कर दो. ऐसे लोगों की ऐसा दिखाओ कि आपको समझ में आ रही चीज़ें. आगे जब वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, अच्छा ये उसकी बात हो रही है. और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप उसको ऐसा रुक के बोल सकते हो कि हाँ आपने इसका जिक्र किया था, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया. आप भी ह्यूमन हो एंड आई फील दैट. सो प्रेजेंट हो गया, स्पीच शुरू हुई, इसमें 2 नॉन वर्बल क्यूज और कंट्रीब्यूशन हो गया. आप पर्सपेक्टिव से अब देखना शुरू कर चुके हो. अब लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, वैसे तो ये आखिर है ही नहीं क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ नोट की है, जब हम बात करने बैठते हैं तो लिमिट नहीं होती बात करने की. बट आई रिकमेंड कि आप लिमिट रखो, जैसे आपकी बाउंड्रीज रह सकती है. बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंशियलिटी इज टॉप प्रायोरिटी बहुत. बट कुछ केसेस में, और आपको वो गाइड में पता चल जाएंगे, तो गाइड को चेकआउट ज़रूर करिएगा. मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है कि रूल्स क्या होते हैं, कहाँ तक आप सुन सकते हो, कहाँ नहीं सुनना है आपको, कहाँ सुन के आपको लीक करनी इन्फॉर्मेशन और कहाँ आपको बहुत इंटैक्ट रखनी है. ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी उसमें मिलेगा आपको, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा. और तो खैर बात तो आपकी शुरू हो गई. अब आप ख़त्म इसको कैसे करोगे? अपने रिफ्लेक्शन दे सकते हो, जैसे हाँ मुझे ये समझ में आया, बुरा हुआ आपके साथ, या फिर मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए. मतलब जो भी उनके एक्सपीरियंस है, जो भी वो आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में अपना एक छोटा सा समरी दे दो कि आप क्या फील कर रहे हो और वगैरह वगैरह, और उनको दिलासा दो. बट दिलासा देने में और एडवाइस देने में तो बहुत फ़र्क होता है. एडवाइस नहीं देनी है आपने, बाहर में बोलना है. एडवाइस सिर्फ उन्हें देनी है जिन्हें इसकी ज़रूरत है. और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं होती. वो सिर्फ चाहते हैं कि वो कोई उन्हें सुन ले. आप बस उनके सुन लो. और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए वर्क किया वो सामने वाले के लिए भी वर्क करे, या वो किसी और के लिए भी वर्क करे. एडवाइसेस आर डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो मेरे लिए अगर कोई एडवाइस वर्क की है तो मैं आपको वो दूँ तो चाहूँगी, बिकॉज मेरे लिए वर्क की तो हो सकता है वो आपके लिए भी वर्क कर ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है. वो उनके लिए कुछ और ही हो जाता है. इसीलिए एडवाइसेस आई रिकमेंड कि मत देना. क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर वो आपके पास नहीं आएंगे. वो ये बोलेंगे कि अरे ये तो अपना ही बोलना शुरू कर देता है, ये एडवाइस देना शुरू कर देता है, इसके पास जाऊँगी तब ये 10 एडवाइस भी दे देगा सुनने के बाद. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है क्यों बोल रही हूँ. जज नहीं करना आपने. क्यों? कब तक? जब तक एथिकल है, मॉरल है सब कुछ, तब तक जज नहीं करना. एक ह्यूमन बीइंग की जैसा सामने वाले को परसीव करना है. Human being, they are humans and they have right to make mistakes, but mistakes have limits. ऐसा नहीं बोल सकते आप कि उन्होंने मर्डर करके या उन्होंने किसी को हर्ट किया इमोरली तो उसके ऊपर भी आप इनोसेंस, वो नहीं. लिमिट्स, देयर आर लिमिट्स. वो लिमिट्स मैं आपको गाइड में बता दूंगी, तो आप गाइड चेकआउट कर लीजिएगा. और डाउन कर रहे हैं ना, नोट डाउन. कितने बार देखोगे आप ये वीडियोस? नोट डाउन करो. कन्वर्सेशन एंड कर देनी है. कन्वर्सेशन एंड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आपको अपना मी टाइम भी बहुत ज़रूरी होगा. देखो, अगर आप किसी के थेरेपिस्ट हो ना, एक थेरेपिस्ट को भी ज़रूरत पड़ती है उसके अपने मी टाइम की. अब मी टाइम क्या होता है? मी टाइम इज़ समथिंग जैसे चार्ज. फ़ोन जब डेड हो जाता है, फ़ोन की जब एनर्जी लो हो रही होती है तो हम उसको चार्ज पे लगाते हैं ताकि वो वापस से यूज़ करने के लायक हो जाए. हाँ, फ़ोन यूज़ करते हैं हम, थेरेपिस्ट यूज़ नहीं करते. ठीक, तो फ़ोन यूज़ करने के लायक हो जाए इसलिए हम उसको चार्ज पे लगाते हैं. एग्जैक्टली
इसी तरह बीइंग एज अ पर्सन जो लोगों की बातें सुन रहा है, जो लोगों को थेरेप्यूटिक मतलब हेल्प कर रहे हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है अपने ध्यान रखने की। देखो, ज़्यादा आप 2-4 लोगों को सुन पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं सुन पाओगे आप 1 हफ्ते में, क्योंकि आपकी अपनी भी स्टोरी है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है, आपको अपनी प्रॉब्लम से डील भी करना है, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत भी है। तब आप दूसरों की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, डील नहीं कर रहे हो, आप बस उनको सुन रहे हो, बट फिर भी आपकी एनर्जी लगती है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको लग रहा है कि अभी आप रेडिएशन के लिए और आप बहुत बर्न आउट फील कर रहे हो या आप बहुत थके हुए हो, तो यू कैन स्टॉप देम, टेल देम ऑनेस्टली कि देखो भाई, आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ एंड आई थिंक दैट आई माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्योंकि अभी मैं अपनी प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहा हूँ, देन वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। इससे क्या होता चलेगा पता है? पहली बात, इससे एक बात बहुत अच्छी तरह पता चलेगी कि आप ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिसिटी इज समथिंग पीपल एक्चुअली कार्व फॉर। या इस एआई वाली दुनिया में ना ऑथेंटिसिटी इज टॉप प्रायोरिटी। एक ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा और दूसरा ये पता चलेगा कि सामने वाला आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जितने अपने टाइम की अहमियत रख रहा है उतनी आपकी भी टाइम की अहमियत रख रहा है। वरना एज ए लिसनर मुझे क्या ही करना है? अगर मेरा दिल नहीं है सुनने के लिए तो सामने वाला बोले, वो तो बोल रहा है, अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, मैं सुनूंगी नहीं, मैं तो अपने काम में रहूँगी या फिर मैं जोन आउट हो जाऊँगी। मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, मैं सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही। तो इसीलिए ये चीज़ आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर इफेक्ट करती है और उससे और भी ज़्यादा एनहांस करती है। इसीलिए अगर आप रेडी नहीं हो, लेट देम नो दैट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। और फिर कभी जब आपका दिल करेगा या फिर जब आप एक्चुअली इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब आप इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी देयर फॉर एवरीवन। मैं रिकमेंड करूँगी जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स, आपके कजन्स, आपकी फैमिली, सिर्फ उनको ही सुने, ज़्यादा लोगों को ना सुने। आप हर किसी का आपको जिम्मा नहीं है, आप थेरेपिस्ट नहीं है, लोग आपको पे नहीं कर रहे सुनने के लिए। सो हाँ, जिनसे आपको रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रखना है, उन्हीं को अपना ये खास वक्त दें। जितना आप सामने वाले को अपना अटेंशन दे रहे हो ना, उतना ही आपकी एनर्जी भी उसमें कंज्यूम हो रही है। तो अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करो और हर जगह इसको वेस्ट मत करो, ठीक है? सामने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका यूज़ करके जा रहा है। तो अपने भी प्रोटेक्शन रखो और सामने वाले की प्राइवेसी की भी प्रोटेक्शन रखो। या आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंटैक्ट होनी चाहिए, बट अब वो आपके पास नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, और जितना आप अच्छा बनने की कोशिश करो उतने बुरे बन जाओगे, ठीक है? सो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया एम्पैथेटिक लिसनिंग को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हाउ टू बी एन एम्पैथेटिक लिसनर, एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या है, और टेक्निक्स मतलब स्टेप्स जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है मतलब आप फॉलो करके एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हो। उसी के साथ मैंने आपको आपकी बाउंड्रीज के बारे में भी बताया है और अपनी तरफ से मैंने आपको ये भी बताया है कि कहाँ यूज़ करना चाहिए आपको। बल्कि बाकी अगर आपको बाउंड्रीज के बारे में और जानना है तो आप मेरी गाइड को चेकआउट कर सकते हैं। और जो मेरी गाइड है लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट, उसमें मैंने गाइड तो बनाई है, क्या मतलब उसमें इंफॉर्मेशन तो उसकी है, उसी के साथ साथ जर्नल पार्ट भी है। तो रियल लाइफ कन्वर्जेशन के बाद आप उस जर्नल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस जर्नल में आप देख सकते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या आपको करना ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम क्या आप कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। इट्स लाइक आप ट्रैक कर रहे हैं अपनी स्किल को। तो वो जर्नल बहुत हेल्पफुल होगी, इसीलिए उसको मैंने, गाइड और जर्नल एक साथ ही है, तो मैंने उसको लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एक पेनी भी नहीं ले रही हूँ मैं, एक सिंगल कौड़ी भी नहीं ले रही हूँ। मुझे सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। लाइक ज़रूर करना आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है या थोड़ा भी कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट भी करिएगा। कमेंट ये करिएगा कि आप इसको कब प्रैक्टिस करने वाले हैं, या फिर आपने गाइड ली कि नहीं ली, और या अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो आपको मुझे शेयर करनी है, यू कैन डेफिनेटली कम
इन द कमेंट सेशन, और या तो डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी को भी। या आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, बाय बाय। और मेरा नाम मरियम है, तो इसको भी भूलना नहीं। बाय बाय।